Jai Shardema students, how are you all? Fine, that's very good. Okay, let's continue. In our previous video, we have started our fourth chapter, that is equatorial forest. In equatorial forest, we have studied what are the equatorial forest, where it lies, that is the location of equatorial forest, and the climate of equatorial forest. In that, we have studied that equatorial forest lies only in three continents, that is South America, Africa, and the southern part of Asia. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट सिर्फ तीन कॉन्टिनेंट्स में लाई करते हैं बिकॉज दे लाइज ऑन द बोथ साइड ऑफ इक्वेटर from equator to 10 degree north and from equator to 10 degree south. Now if we talk about the climate of equatorial forest region is very hot and humid because first of all this region lies near the equator which receives the direct rays of sun throughout the year. And the second thing is that this is the region which receives the rainfall throughout the year. That is why this region is very hot and humid. Now, today we have to start our next topic, that is the plant life. Students, we have already studied about the climate. वहाँ का climate हम पहले ही पढ़ चुके हैं that climate is very hot and humid. यहाँ पर पूरे साल बहुत ज़्यादा बारिश होती है जिसकी वजह से यहाँ पर plants की growth बहुत ज़्यादा होती है. There is a luxuriant growth of plants in this region. Now, today we will start our next topic of the chapter, that is plant life. Let's read first of all what is given over here. Since the region receives rainfall throughout the year, there is a luxuriant growth of natural vegetation. Yes, I told you earlier, because कि यहाँ पर पूरे साल rainfall होता है. This region receives a rainfall throughout the year. The growth of trees is वेरी मच हाई. यहाँ पर जो ट्रीज की ग्रोथ होती है वो बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज दिस रीजन रिसीव्स द रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर. यहाँ पूरे साल बारिश होती है. द इक्वेटोरियल रीजन इज एन एवरग्रीन रीजन as all the trees remain green and do not shed their leaves at the same time. The thing I told you earlier कि इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन्स को रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं. आई टोल्ड यू ना कि अदर नेम ऑफ इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट इक्वेटोरियल फॉरेस्ट इज इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट. दीज फॉरेस्ट आर ऑल्सो नोन एज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इन फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है बिकॉज द प्लांट्स ऑफ दीज फॉरेस्ट नेवर शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम. Students, I'm saying that they never shed their leaves at the same time. That does not mean they did not shed their leaf. They shed, but at the different times of year. यहाँ के जो ट्रीज होते हैं वो बहुत सारी लेयर्स में होते हैं. दे आर मोस्टली फाउंड इन 4 लेयर्स. अमरजेंट लेयर, कैनोपी लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ऐसे बहुत 4 लेयर्स होती हैं जिनमें यहाँ के ट्रीज़ की ग्रोथ होती है और हर एक लेयर का अपनी लीव्स को शेड करने का टाइम अलग अलग होता है. एंड बिकॉज ऑफ दैट वेन एवर वी विल सी दैम दे लुक्स ग्रीन एंड दैट्स वाई वी कॉल दैम एवरग्रीन फॉरेस्ट. और इस वजह से हम उन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं बिकॉज कि यहाँ के जितने भी प्लांट्स हैं उनका अपने अपनी लीव्स को शेड करने का जो टाइम पीरियड होता है वो डिफरेंट होता है और इसी की वजह से ये फॉरेस्ट हमेशा ग्रीन दिखाई देते हैं. द ट्रीज ग्रो इन डिफरेंट हाइट्स फॉर्मिंग सेवरल लेयर्स. सी, I told you they are having 4 layers. The topmost layer is emergent layer, before that is canopy, then forest floor, and the last one is ground floor. That I will show you later. Okay. The trees of these region
also have broad leaves and thick branches. जो ये ट्रीज़ हैं, इस रीजन के जो ट्रीज़ हैं उनकी लीव्स बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है और उनकी जो ब्रांचेस होती है वो थिक, मोटी होती है. See, I'll show you. This is how the equatorial forest looks like. ऐसे equatorial forest होते हैं. These looks evergreen. Every time whenever we see them, they looks green. Now, this is how the trees grow in the equatorial forest region. The topmost light green color में जो हम देख रहे हैं, that is called emergent layer. It is the topmost layer. Below that is the canopy layer. Before that it's understory, that is also you can call the forest floor, and the last is ground floor. In these four layers the trees grow in this region. इन layers में trees यहाँ पर grow होते हैं. जब भी इनमें से किसी भी एक लेयर के लीव्स शेड होते हैं, बाकी की 3 लेयर्स पर लीव्स होते हैं. दैट्स वाई ये एरिया, ये जो रीजन है वो हमेशा एवरग्रीन रहता है. इसीलिए इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहा जाता है. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन फॉरेस्ट. ओके, forming a canopy at their top, that the branches and leaves, जो leaves होती है as I showed you earlier. See the canopy layer, इसके जो branches हैं और leaves हैं वो बहुत broad होती हैं और branches thick होती हैं, जिसकी वजह से ये नीचे के एरिया को ऑलमोस्ट कवर कर लेती हैं. एंड बिकॉज ऑफ दैट थिंग the sunlight, it is very difficult for the sunlight to reach on the ground floor. So ये जो forest होते हैं ये अंदर से बहुत deep और dark होते हैं, because जो canopy layer और emergent layer होती है उसके नीचे sunlight पहुंच ही नहीं पाती, जिस वजह से ये trees, these forest from inside, these are very dark. Mosses and lichens grow on the damp trunk and branches of the trees inside the forest. See, mosses and lichens. These are the, see, this is the picture of mosses and this is the picture of lichen. मॉसेस और लाइकेंस ये क्रीपर्स की तरह होते हैं जो कि फॉरेस्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर पर जो ट्रीज के ट्रंक होते हैं ना उनके ऊपर ग्रो होते हैं, वहां पर ग्रो करते हैं. द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट आर वेरी यूजफुल. इक्वेटोरियल फॉरेस्ट रीजन हमारे लिए बहुत यूजफुल है. यहाँ पर बहुत सारे डिफरेंट ट्रीज होते हैं, अबोनी, मोहोगनी, रोजवुड, इस तरह के बहुत सारे ट्रीज होते हैं और ये सारे ट्रीज बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड करते हैं. जितना भी हमारा वुड का वर्क होता है, जो वुड इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जो वुड से नए प्रोडक्ट्स बनाती हैं या वुड को यूज़ करती हैं, उन सब कंपनीज़ के लिए, फैक्ट्रीज़ के लिए ये सारे ट्रीज़ बहुत अच्छा रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं. दीज फॉरेस्ट ऑल्सो कंप्राइज क्रीपर्स. यहाँ पर क्रीपर्स भी होते हैं. यू नो द क्रीपर्स विच कांट मूव बाय देमसेल्फ, विच कांट स्टैंड बाय देमसेल्फ, जो अपने आप से स्टैंड नहीं कर सकते, वो किसी फॉरेस्ट फ्लोर की सहायता से, हेल्प से आगे बढ़ते हैं. क्रीपर्स. मैनी क्रीपर्स, ऑर्किड्स, लियान्स एंड टॉल ट्रीज. यहाँ पर बहुत सारे क्रीपर्स होते हैं, ऑर्किड्स होते हैं, लियान्स होते हैं और लंबे लंबे ट्रीज भी होते हैं. दे रिलीज ऑक्सीजन एंड अ लॉट ऑफ मॉइस्चर इनटू द एयर. बिकॉज कि यहाँ पर जो ट्रीज हैं उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है. एज वी नो द ट्रीज, दे रिलीज द ऑक्सीजन एंड अब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड. तो यहाँ पर ये ऑक्सीजन को भी बहुत ज़्यादा रिलीज करते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में. एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इन आवर फर्स्ट टॉपिक, लोकेशन के लेफ्ट हैंड साइड हमें एक इन्फो पैबल दिया था. इन दैट वी हैव स्टडीड दीज रेन फॉरेस्ट प्रोवाइड 28% ऑफ वर्ल्ड्स ऑक्सीजन.
ये वर्ल्ड की पूरी ऑक्सीजन का 28% अकेले सप्लाई करते हैं। सो बिकॉज कि यहाँ पर जो ट्रीज़ होते हैं उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा होती है, उनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, एंड दे नेवर शेड देयर लीव्स एट द सेम टाइम। वो एक ही टाइम पर कभी अपने लीव्स को शेड नहीं करते, वो एवरग्रीन होते हैं, जिसकी वजह से वो कंटिन्यूस ऑक्सीजन को सप्लाई करते हैं, which forms the thick clouds and result in heavy precipitation, जिसकी वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं और यहाँ पर बारिश होती है। इनफैक्ट दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड द रेन फॉरेस्ट, और इसीलिए इन्हें रेन फॉरेस्ट कहते हैं, बिकॉज कि यहाँ के फॉरेस्ट जो मॉइस्चर रिलीज़ करते हैं, उस मॉइस्चर की वजह से क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, उस क्लाउड की वजह से वहाँ पर रेनफॉल होती है, तो इसलिए हम इन्हें रेन फॉरेस्ट भी कहते हैं। एंड बिकॉज कि यहाँ के जो ट्रीज़ हैं वो एवरग्रीन हैं, तो हम इन्हें एवरग्रीन फॉरेस्ट भी कहते हैं। ओके, नाउ come to our next topic, that is wildlife. Now we have studied about location, climate, plant life. Now we will study that which kind of animals or wildlife is found over here. यहाँ पर किस तरह की wildlife होती है, as these forests are very dark and बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ये फॉरेस्ट थिक होते हैं, डेंस होते हैं। सो यहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी बहुत ज़्यादा वैरायटी में होती है, बहुत ज़्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी अमाउंट में यहाँ पर वाइल्ड लाइफ होती है। एनिमल लाइफ इन द इक्वेटोरियल रीजन इज़ फाउंड इन अबेंडेंस, ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होते हैं। देयर आर एन इमेंस नंबर एंड वेराइटी ऑफ इंसेक्ट्स, यहाँ पर बहुत सारे और बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के इंसेक्ट्स होते हैं, सच एज बटरफ्लाइज, मॉस्किटोज, स्पाइडर्स एट्सेट्रा। तो ये सब इंसेक्ट्स होते हैं, एक जैसे नहीं, मतलब उनकी बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं और उनकी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी भी होती है। एनिमल्स लाइक गोरिल्लाज, चिंपैंजीज, वाइल्ड पिग्स एंड ओकापीज, सी दिस इज द ओकापी। सो ये यहाँ के एनिमल्स होते हैं, गोरिल्लाज होते हैं, चिंपैंजीज होते हैं, वाइल्ड पिग्स होते हैं, ओकापीज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट द फेमस एनाकोंडा स्नेक इज ऑल्सो एन इनहैबिटेंट ऑफ द अमेजोन बेसिन ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका का जो अमेजोन बेसिन है, नियर बाय द अमेजोन रिवर, जो अमेजोन बेसिन है, वहाँ पर द फेमस एनाकोंडा स्नेक भी होता है। जो एनाकोंडा, एज वी नो वेरी वेल दैट इट हैज़ द पावर, इट कैन ईट अ ह्यूमन बींग। सो वो एनाकोंडा स्नेक भी यहाँ पर पाए जाते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट द बिग एनिमल्स, अगर हम बिग एनिमल्स की बात करें तो बिग एनिमल्स में यहाँ क्या होते हैं, जगुआर्स। सी दिस इज द जगुआर। Jaguars, crocodiles, elephants are also found in this region. यहाँ पर jaguars, crocodiles और elephants ये big, large mammals होते हैं। Then there are as well a large variety of monkeys and colorful birds. यहाँ पर बहुत सारे different different varieties के monkeys भी होते हैं और बहुत डिफरेंट डिफरेंट वर्ड्स भी होते हैं। सो इफ़ वी टॉक अबाउट द वाइल्ड लाइफ, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हर तरह की वाइल्ड लाइफ होती है। इंसेक्ट्स भी होते हैं, मैमल्स भी होते हैं, स्मॉल एनिमल्स भी होते हैं, बिग एनिमल्स भी होते हैं, फिर स्नेक्स भी होते हैं, रेप्टाइल्स भी होते हैं। सो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के बर्ड्स होते हैं, मंकीज़ होते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के और बहुत सारी वेराइटीज़ और बहुत सारे काइंड्स के एनिमल्स यहाँ पर पाए जाते हैं, बिकॉज दीज फॉरेस्ट आर वेरी डेंस। ये फॉरेस्ट बहुत ज़्यादा डेंस होते हैं, इसलिए यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ होती है वो भी उतनी ही ज़्यादा अमाउंट में होती है, अबेंडेंस होती है। ओके, सो नाउ वी हैव completed द प्लांट लाइफ एंड द वाइल्ड लाइफ. Now in our next topic we will study about the human life. Till then, bye.